السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آج مسلمانوں کو پریشان کیوں کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو طرح طرح سے بیماریوں نے کیوں آ کر کے گھیر لیا ہے، آج دنیا پر بارش اپنے وقت کے اوپر کیوں نہیں ہو رہی ہے، جتنی بارش ضرورت ہوتی ہے اتنی کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرنا تاکہ یوٹیوب اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائے اور آپ کے ایک لائک سے دوسرے کو اس بات کا علم ہو جائے۔ دوستو، حدیث سنیے، حضرت امام عطا ابن رباح علیہ رحمہ سے مروی ہے، فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے بتایا کہ ایک بار مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں 10 لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ بیان کرتے ہیں ان میں کا 10واں فرد میں تھا، یعنی 10 سے کم نہ تھے نہ 10 سے زیادہ سے تھے، صرف 10 لوگ تھے۔ اور وہ 10 لوگ جو تھے وہ کون تھے، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں تھا، اور ان میں حضرت ابو بکر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی تھے، حضرت عبد الرحمن تھے، حضرت ابن مسعود تھے، حضرت معاذ تھے، حضرت حذیفہ تھے، حضرت ابو سعید خدری تھے، اور 10واں خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اتنے میں ایک انصاری نوجوان لڑکا آیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر مجلس میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ اب 11 لوگوں کی جماعت ہماری ہو گئی، اور اس نوجوان نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ اچھے سوالات کیے۔ کیا سوالات کیے؟ اس نے عرض کیا کہ حضور، مسلمانوں میں سب سے زیادہ فضیلت یعنی برتری والا کون ہے؟ یہ سوال جو اس نے کیا تو یہ عام لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے، صحابہ اکرام کو اور ان کے بعد میں جتنی جو آبادی ہے اس کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، برتری والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں کا جس کا خلق سب سے زیادہ اچھا ہو، یعنی تم میں کا وہ سب سے بہترین انسان ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہو۔ پھر اس نے عرض کیا کہ حضور یہ بتائیں کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہوشیار چالاک کون انسان ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو وہ ہوشیار ہے، اور موت کے لیے سب سے زیادہ اچھی تیاریوں میں لگا ہو وہ سب سے زیادہ ہوشیار ہے۔ اس سے پہلے کہ اس پر موت کا نزول ہو، ایسے ہی بندے کو ہوشیار اور عقل مند کہا جاتا ہے اور چالاک کہا جاتا ہے۔ یعنی کون؟ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو، موت کو سب سے زیادہ اپنے قریب سمجھتا ہو، اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاریاں اس نے کر لی ہو، قبر کی تیاریاں اس نے کر لی ہو، تو وہ سب سے ہوشیار آدمی ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر اس لڑکے نے اور کچھ نہیں پوچھا، صرف اتنا ہی پوچھا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری یعنی جملہ حاضرین کی طرف اقبال فرما کے ارشاد فرمایا، یعنی ہم لوگوں کی جو 11 لوگوں کی جماعت تھی اس کی طرف پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے مہاجرین و انصار کی جماعت سنو، 5 خصائل ایسے ہیں یعنی برے ہیں کہ جب تم ان میں خدا نخواستہ مبتلا کر دیے جاؤ، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم انہیں پاؤ، تو تم اپنی آنکھ سے ان کی نحوست اور خرابی دیکھ لو، لہٰذا بہت ہوشیار رہنا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اب یہاں سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر ایک بات کو اپنے دل کی تختے کے اوپر نوٹ کرنا اور ذہن لگا کر کے سننا۔ وہ 5 باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، اور وہ 5 باتیں بری ہیں، اور یہ 5 باتیں آج عام ہیں، سب پوری بستی کے اندر، پورے شہر کے اندر، پورے علاقے کے اندر، پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر تقریباً آپ کو یہ 5 چیزیں مل جائیں گی۔ اسی وجہ سے آج ظلم ہو رہا ہے۔ کون سی؟ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کسی قوم میں فواحش یعنی زنا، اغلا وغیرہ کھلا ہونے لگے، یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں، حتیٰ کہ کھلا بے جابانہ ان کا ارتکاب کرنے لگے، بے حجابانہ ان کا ارتکاب کرنے لگے، تو لا محالہ ان میں تعاون وغیرہ پھیلے گا، اور ایسی نئی سخت بیماریاں عام ہوں گی کہ ان کے اگلوں میں پیدا نہیں ہوئی ہوں گی۔
उन्होंने ना देखी होंगी ना सुनी होंगी। जो सबसे पहली बात मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाई वो ये है कि ज़िना आम होगा, ज़िना आम होगा और लोग इस काम को खुलम खुला करेंगे और फिर इसके ऊपर इर्तिकाब करेंगे, यानी इसको लोगों के ऊपर जाहिर करेंगे, बताएंगे कि मैंने फ़ला काम वहाँ के ऊपर किया, ये गुनाह वहाँ के ऊपर किया है, और इसके ऊपर फ़ख्र करेंगे, इनके ऊपर फ़ख्र करेंगे। जब ऐसा वक्त आ जाए तो याद रखना उस वक्त खुदा की पनाह मांगता और उनके ऊपर लामुहाला ताउन फैलेगा और ऐसी ऐसी सख्त बीमारियां आम होंगी कि उनके ना तो अगलों ने कभी सुनी हुई होंगी और ना ही कभी देखी हुई होंगी। और आज यही है, ज़िना करके इंसान पछताता नहीं है बल्कि बयां करता है, चोरी करके इंसान पछताता नहीं बयां करता है, ताश खेल करके इंसान पछताता नहीं बयां करता है, सूद खा के इंसान मुसलमान परेशान नहीं होता है, वो शर्म नहीं करता है बल्कि वो खुश होता है, अपनी दौलत पे खुश होता है, लोगों को सता करके खुश होता है वगैरह वगैरह। तो आज देखिए वो बीमारियां सुनने में आ रही हैं जिस बीमारी को हम और आपने अपने बचपनों में ना सुना होगा और जो हमारे बुजुर्ग गुजर गए उन लोगों ने ना सुना होगा। सज़ा कुछ को नहीं मिल रही बल्कि सबको मिल रही है, लेकिन ख़ताकार कुछ हैं, सज़ा सबको मिल रही है। दूसरी चीज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वो है, और जब भी कौम तौल नाप यानी माप में कमी करे, यानी ख़यानत उनके खूबू हो जाए और इस जुल्म ऐब को अपना हुनर मानने लगे, तो ज़रूर उनको कहत यानी खुश्क साली में मुब्तला किया जाएगा, जिसके नतीजे में भूखे मरेंगे और सख्त मेहनत व मशक्क़त व हुक्मरान तबके का जुल्म व जोर उन पर मसलत कर दिया जाएगा। दूसरी बात जो मेरे मुस्तफ़ा ने बयान फरमाई, सोचो मुसलमानों, गौर करने की है कि जो इंसान नाप तोल में कमी करे, नाप तोल आज जितने ताजिर हैं, यानी कि या आप यूँ समझ लीजिए, या जितने अपने घर के ऊपर काम करते हैं या तिजारत करते हैं गल्ला वगैरह ले जा करके, या जो भी नाप तोल का काम करते हैं या कपड़े वगैरह का कारोबार कर रहे हैं, तो आपको देखिए कि अगर वो कमी करते हैं, और कमी करना ये आज आम बात हो गई है और सब अपने आप को हुनर में बयान करते हैं, जब आपस में बैठे हों तो हंसी मजाक शुरू होती है। अगर आपकी तरफ होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैंने खुद देखा है। तो वहाँ के ऊपर बयान करते हैं, यार मैंने उसको इतना नाप दिया, अगर मैं पूरा नाप को दूँ तो मेरा नुकसान हो जाएगा। दूसरे का नुकसान करते हैं, अपना नुकसान नहीं करेंगे। बोलते हैं यार मैं तोल देता हूँ, लोगों के सामने कम तोलता हूँ जब देना होता है कुछ, लेकिन वो सामने वाला जान नहीं पाता। मैं ज़्यादा तोल लेता हूँ जिसका सामान लेता हूँ, लेकिन वो जान नहीं पाता। यानी कि अपने ऊपर फ़ख्र करते हैं, नाप तोल में अपने ऊपर फ़ख्र करते हैं, अपना ये हुनर समझते हैं। तो रसूल ने फरमाया जब लोग अपना हुनर समझने लगे तो उनका नतीजा ये होगा कि उनके ऊपर खुश्क साली होगी। और हकीकत है आज बारिश देखिए बेवक्त हो रही है, हमें ज़रूरत है बारिश की आज, लेकिन बारिश न जाने कब हो रही है। इस साल अगर हमारे इलाके की बात की जाए तो हमारे इलाके में इतनी बारिश नहीं हुई है जितनी कि हर साल होती थी, ना के बराबर बारिश हुई है। लेकिन फसलें हमारी तरफ बर्बाद हैं, लोगों के तो 100 बीघे की खेती चली गई। मेरे खुद जो खेती थी तकरीबन 7.5 बीघे तक वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। हमारी तरफ एक कहावत मशहूर है कि गेहूं के साथ में घुन भी पिसते हैं। तो कुछ नेक बंदे भी हैं, मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ नेक बंदे भी हैं तो जो अल्लाह की इबादत करते हैं हर वक्त, तो वो अल्लाह क्या करते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वही हैं जो अपने ऊपर फ़ख्र महसूस करते हैं कि मैंने फ़ला का नाप दिया और मैंने फ़ला को तोल दिया, लेकिन वो समझ नहीं पाया। नंबर 3, तीसरी बात जो रसूल ने इरशाद फरमाई, और जब लोग उमूम अपने माल को ज़कात बंद कर दें तो ज़रूर इस बात के मुस्तहक़ होंगे कि आसमान से उनको कतरे ना मिले। अगर जानवर ना होते तो उन पर मैना बिल्कुल ना बरसता। बारिश जो हो रही है, जो बेजा भी बारिश हो रही है और कुछ फसलें भी हमको मिल रही हैं, तो सिर्फ़ इस वजह से कि जानवर हैं, जानवरों की वजह से बारिश हो रही है, वरना हम इसके भी लायक ना थे जो बारिश हम तक पहुंच रही है। और नंबर 4, जब भी कोई कौम अल्लाह व रसूल से किए हुए वादे को तोड़ेगी तो ला मुहाला अल्लाह ताला उन पर उनके दुश्मनों को
जो गैर कौम से होंगे मुसल्लत कर देगा, उनके ऊपर मुसल्लत कर देगा जो गैर कौम से होंगे, उनके दुश्मनों को। जब भी कौम अल्लाह उसके रसूल के किए हुए वादे को तोड़ेगी, आप बताइए अल्लाह उसके रसूल से मुसलमानों ने वादा क्या लिया है? वादा तो यही कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, हम अपने पड़ोसी का ख्याल रखेंगे, पड़ोस में कोई भी हो हम उसका ख्याल रखेंगे, हम नमाज के वक्त के ऊपर नमाज पढ़ेंगे, यानी पाबंदी के साथ में ज़ोहर का टाइम होगा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, असर का टाइम होगा असर की नमाज़ पढ़ेंगे, इशा का वक्त होगा इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, फजर का वक्त होगा फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। हम शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, जिस बात को करने का हुक्म अल्लाह उसके रसूल ने दिया है उसको करेंगे, और जिस बात से दूर रहने का हुक्म अल्लाह उसके रसूल ने दिया है उससे हम दूर रहेंगे। यही हमने वादा किया है अल्लाह से, लेकिन हम इसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। नमाज़ें होती हैं, अज़ान हो रही है, नमाज मस्जिद में हो रही, जमात हो रही, लेकिन हम मज़े से अपने घरों में पड़े हैं, हम मज़े से ऐश व इशरत में पड़े हुए हैं। हम अल्लाह उसके रसूल के ऐसे वादे को भूल गए जो हमारे लिए दुनिया पर भी काम आता और आखिरत में भी हमारे काम आएगा। उस वादे को हमने अल्लाह के तोड़ दिया, हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो वादा किया था उसको तोड़ दिया। तो ला मुहाला अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उन पर उनके दुश्मनों को जो गैर कौम से होंगे मुसल्लत फरमा देगा, जो गैर कौम से होंगे उनके ऊपर मुसल्लत होंगे, उनके ऊपर जुल्म करेंगे, उनको मारेंगे, उनको सताएंगे। तो आज जो जुल्म व सितम हो रहा है मुसलमानों, ये उनका कसूर नहीं है जो कर रहे हैं, बल्कि ये हम और आपका कसूर है, हम और आपकी गलती है कि हम सही नहीं हैं। हम अपने आप को सही करें, हम उन बातों को सोचें कि और सीखें जिसको अल्लाह उसके रसूल ने करने का हुक्म फरमाया है। तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जैसे कि शायर ने कहा है, आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। तो आज हमारे ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है, खैर की कौमें जो हमारे ऊपर जुल्म सितम करती हैं, तो सिर्फ़ इस वजह से कि हमने अल्लाह उसके रसूल के वादे को तोड़ दिया है। और फिर कहते हैं कि मुसलमानों की कोई मदद करने वाला नहीं है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। नहीं, हम खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, कोई जुल्म नहीं करता है। हम आज सुधर जाएं, आज हम पर जुल्म बंद हो जाएगा। और नंबर 5, और जब भी मुसलमानों का हुक्मरान तबका किताबुल्लाह यानी कुरान शरीफ के हुक्म को छोड़ेगा, तो ला जुर्म अल्लाह के करने से उनके आपस में सख्त से सख्त जंग व जिदाल बर्पा होगी, उन्हें सुकून चैन मैसर नहीं आएगा। यानी जो हुक्मरान तबका, चाहे प्रधान हो या कोई भी हो, हुक्मरान तबका कुरान शरीफ को यानी किताबुल्लाह को छोड़ करके अपने आप से वो फैसले करना शुरू कर देगा, और वो उसने इल्म ना रखा हो, तो वो लोग कोई जुर्म भी नहीं करेंगे, लेकिन आपस में वो सख्त से सख्त हो जाएंगे, उनको चैन नहीं मिलेगा, उनको सुकून नहीं मिलेगा और उन्हें करार नहीं मिलेगा। तो मुसलमानों, ये 5 बातें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, आप बताइए क्या ये बातें आज आम नहीं हैं? आप बताइए क्या ये बातें सब में नहीं पाई जा रही हैं? तकरीबन आज हर एक इंसान, हर एक बस्ती के अंदर पाई जाती है। हर एक इंसान को तो मैं नहीं कह सकता, खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ख़ता से माफ़ फरमाए, मैं सबको नहीं कह सकता, लेकिन हर एक बस्ती में तो ज़रूर ये चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ लोग आपको ज़रूर मिल जाएंगे जो गुनाह करके अपने ऊपर फ़ख्र करते हैं, ज़िना करके फ़ख्र करेंगे, ताश खेल करके फ़ख्र करेंगे, खुदा के वादे को जो तोड़े हुए हैं, खुदा के वादे को तोड़े हुए फिर बोलते हैं कि हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं। तरह तरह की बातें जो मैंने आपको बताई हैं, क्या वो सारी चीज़ें आज पाई नहीं जा रही हैं? तो आज जो जुल्म हो रहा है, जो नई नई बीमारियां आ रही हैं, जो बारिश बेवक्त के ऊपर हो रही है और जो खुश्क साली पाई जा रही है, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ है मुसलमानों का। मुसलमानों की वजह से नई नई बीमारियां आ रही हैं, और नई नई तमाम जो वह बीमारी जिसको हमने कभी सुना नहीं था, वो खुश्क हाली हमारे ऊपर जो पड़ी हुई है, जो हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से कि हमने खुदा के वादे को तोड़ दिया। हमें परेशान किया जा रहा है इस वजह से कि हमने खुदा के वादे को तोड़ लिया। तो आज ज़रूरत है मुसलमानों, आज भी हमें अपने आप को सुधारने की। आज भी अगर हम तौबा कर लें और अपने भाइयों का हक़ पहचानें, नमाज की पाबंदी करें, अपने बड़े का अदब करें, एहतराम करें, ख्वाह वो किसी भी कौम से हो उसका हम अदब करें, अदब के साथ पेश आएँ, अपनी नज़रों को झुका करके चलें,
کسی ماں بہن کی طرف نظر نہ اٹھا کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ رب العزت آج بھی ہمارا اسلام جیسے کل بلند تھا ایسے آج بھی بلند ہے، لیکن کچھ خامیاں ہیں ہمارے اندر،